Hello friends, today I'm going to explain you about Word, Microsoft Word tutorial. Yes, so the first thing that we must know that Microsoft Word has many options, like you can take Google Docs which is available online, then we have Notepad, WordPad, and even now we are having Linux based in that we are having OpenOffice. Yes, OpenOffice that is also available free, right? It is available free and it can be available online also, so you can download it. Next, now in this everyone know the file extension is .docx. Yes, what is the file extension? .docx. Next, you can see over here the whole Word document with the window over here. In that I will explain you first of all the components of it. So first component, that is about title bar, which is at the top. You can see my cursor over there. Next is the quick access toolbar. In that you can see commonly used commands over there, like many of the commands are given already: undo, redo, save, and if you want more you can add it over there, and even you can remove it. Like I don't want print preview, I will just click over there and it is removed. Okay, next now we are having here on the right hand side, that is minimize, maximize, close. Everyone is aware about it. Minimize, everyone know that it will go to the taskbar. Maximize or restore, maximize or otherwise it will be a restore, right? And the close button. Next now, that is about ribbon. Yes, you can set how you wanted the ribbon, like auto hide the ribbon. So when you are working at that time it will be auto hide. Okay, if you don't want it any of the tabs or the groups, then you can hide it. Okay, then हमारे पास दूसरा एक है कि yes we can go with the show tabs. Show tabs means यानी क्या होगा, only tab आपको दिखेंगे, not the groups. Okay, you can see the title bar and the tab. आप title bar और tab को देख सकते हो. Next is show tab and commands. Yes, show tab and commands यानी tab और commands दोनों आपको दिखेंगे. Yes, you can see tabs and commands, both the things, in which the group also you can see it. It is visible to you all. Okay, फिर हमारे पास है यहाँ रिबन में टैब एंड द ग्रुप्स. टैब यानी आपको दिख ही रहा होगा, फाइल टैब, देन यू हैव होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन, दिस ऑल आर कॉल्ड द टैब्स. ये सारे टैब्स बोले जाते हैं. अब जैसे यहाँ आपको क्लिपबोर्ड दिख रहा है, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, दैट ऑल आर द ग्रुप्स. वो सारे ग्रुप्स है. ओके, अब हमें क्या करना है, राइट? देन आफ्टर दैट यू कैन सी हियर द रूलर. आपको यहाँ रूलर दिख रहा है जिसमें 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ है. तो उसमें वर्टिकल भी है ना हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल इज एट द टॉप और वर्टिकल वाला आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा. ओके, सो रूलर, व्हाट इज द यूज ऑफ रूलर? रूलर हमें मार्जिन सेट करने में बहुत काम आता है. हमें अगर मार्जिन सेट करना है, A4 साइज, लेटर का साइज, लेटर पैड का साइज, ओके, इवन फॉर द ग्रीटिंग्स और एनी मोर सेटिंग्स यू वांट टू डू, तो आप किससे कर सकते हो? रूलर से भी कर सकते हो, एंड इवन यू कैन सेट बाय द मार्जिन्स. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ स्क्रोल बार. आपको स्क्रोल बार दिख रहा होगा, ये है हमारे लिए वर्टिकल स्क्रोल बार. वो ऑपोजिट में है ऑफ द रूलर. प्लीज दोनों को मिक्स मत करना. वर्टिकल स्क्रोल बार एंड वर्टिकल रूलर आर डिफरेंट. रूलर किसके लिए है? टू सेट द मार्जिन. पर हमारे पास ये स्क्रोल बार है. द स्क्रोल बार विच वी आर हैविंग, दैट इज टू मूव टॉप टू बॉटम. ओके, एंड इवन अगर आपका ये पार्ट बड़ा दिख रहा है, मीन्स द मार्जिन अकॉर्डिंग टू दैट, तो फिर बाद में आपको यहाँ स्क्रोल बार हॉरिजॉन्टल भी दिखेगा. ओके, नाउ what is the use of scroll bar? Scroll bar is used to see that if anything is not visible. अगर आपको कुछ चीज़ें visible नहीं है तो आप टॉप पर जा सकते हो, बॉटम में जा सकते हो with the help of scroll bar. Okay, ये है vertical scroll bar to move from top to bottom. Okay, और ये है horizontal scroll bar जो bottom में होता है, which is to move from left to right. Okay, left से right हमें जाना है, then we will use the horizontal scroll bar. ठीक है, अभी नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा पेज 1 76 वर्ड्स. दिस ऑल इज द पार्ट ऑफ स्टेटस बार. स्टेटस बार में क्या दिखाएगा? वो स्टेटस दिखाएगा कि आपने कितने वर्ड्स लिखे, लाइक यू हैव रिटन हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी पेज. इवन यू कैन डू द सेटिंग ऑफ योर ओन.
and by default you can see your read mode, print layout, web layout and the slide bar. स्लाइड बार जूम करने के लिए, जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको यूजफुल है. ओके, अब जाएंगे नेक्स्ट थिंग, दैट इज हाउ टू सेव एंड ओपन योर फाइल. राइट, तो आपने यहाँ फाइल में जाना है. राइट, एंड दैट यू वांट टू सेव इट बाय प्रोटेक्टिंग दैट थिंग. तो आप क्या करोगे, क्लिक ऑन सेव. यू हैव द शॉर्टकट की ऑल्सो, कंट्रोल एस. ओके, अब मैं कहीं से इसे सेव करना चाहती हूँ, लाइक आई वॉन्ट टू गो टू माई डेस्कटॉप. मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहती हूँ. देन यस, आई वॉन्ट टू कीप इट सीक्रेट, यानी मुझे ये पासवर्ड प्रोटेक्शन देना है. आई वॉन्ट टू गिव द पासवर्ड प्रोटेक्शन. तो टूल्स में जाकर आई विल गो फॉर जनरल ऑप्शन एंड देन आई विल गिव द पासवर्ड. प्लीज रिमेंबर, पासवर्ड देने के बाद भूल मत जाना. ओके, हियर इट इज ऑल्सो गिवन ओवर हियर द ऑप्शन के रीड ओनली रिकमेंडेड, यानी अगर किसी वो कोई ओपन करना चाहता है तो सिर्फ वो रीड कर सकता है. दे कैन नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस. ओके, नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन ओके. अगेन इट विल आस्क टू मी टू गिव द पासवर्ड. मैंने फिर से पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है. ओके, तो ये याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है कि पासवर्ड अच्छे से दिया गया हो. ओके, नाउ इट इज डन. ओके, और क्लिक करना है सेव पर. आपके पास यहाँ भी एक ऑप्शन है, राइट, इन दैट रिव्यू रेस्ट्रिक्ट करना. राइट, तो रेस्ट्रिक्ट में भी आपके पास ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट के लिए. ओके, तो ये भी एक है ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट नाउ हमारे पास ऑप्शन नेक्स्ट है हाउ टू ओपन. एवरीवन नो कि फाइल ओपन में जाकर आप क्लिक करोगे या कंट्रोल प्लस ओ, द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ, देन यू कैन ओपन एनी ऑफ योर फाइल्स. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट न्यू. अगर आपको न्यू फाइल चाहिए देन यू कैन गो विद द न्यू फाइल. न्यू फाइल इन दैट ब्लैंक डॉक्यूमेंट यू हैव इट. देन यू हैव मैनी ऑफ द टेम्पलेट्स. अगर ऑनलाइन है आप तो टेम्पलेट्स दिखेंगे. आई एम ऑनलाइन सो आई कैन सी द टेम्पलेट्स. मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है. ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर दैट कि हम एडिटिंग कैसे करेंगे, हाउ यू विल डू द एडिटिंग. एडिटिंग मीन्स एवरीवन नो द मॉडिफिकेशन, आपको चेंजेस करने हैं. तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे टेक्स्ट को, लाइक बाय मेकिंग अ डबल क्लिक यू कैन सिलेक्ट अ वर्ड. बाय मेकिंग अ ट्रिपल क्लिक यू कैन मेक इट अ सिलेक्शन ऑफ द पैराग्राफ. आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, देन यू कैन गो विद द ट्रिपल क्लिक ऑन द माउस. बोथ द मेथड्स आर देयर. आपके पास दो मेथड है, कीबोर्ड या तो फिर माउस. माउस इज वेरी मच ईजी फॉर अस. ओके, अगर आपको सिलेक्शन यहाँ से सिलेक्शन बार से करना है, देन व्हाट यू कैन डू, you can do the selection of the entire line. Right, you can see the cursor is moving. Okay, you can do like this also by pressing it. Okay, the selection. Next आप डबल क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा नियर द सिलेक्शन बार. प्लीज कीप इट इन माइंड. यहाँ आप अगर क्लिक करते हो पैराग्राफ के बीच में, इफ़ यू आर क्लिकिंग ऑन द पैराग्राफ, तो आपको ट्रिपल क्लिक करना है, 3 बार क्लिक करना है. ओके, देन नेक्स्ट here if you want to do the selection of the whole document, अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन बार में आपको ट्रिपल क्लिक करना है. देखो आपका पूरा डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट हो गया है. ओके, एंड इफ यू वांट टू गो बाय दिस वे तो आपके पास शॉर्टकट की है, दैट इज कंट्रोल प्लस ए. कंट्रोल एंड ए यू विल प्रेस टुगेदर तो वो सिलेक्शन हो जाएगा. ओके, तो ये बात हुई. अभी नेक्स्ट नाउ अबाउट फॉर्मेटिंग. यस, फॉर्मेटिंग मीन्स व्हाट, एवरीवन नो. कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए हमें फॉन्ट ग्रुप बहुत काम में आता है. कैरेक्टर फॉर्मेटिंग यानी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. ओके, इन दैट यू वांट टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट. टेक्स्ट कोई भी तरीके का हो सकता है, या तो फिर वो नंबर्स भी हो सकते हैं या तो टेक्स्ट भी हो सकता है. इवन यू कैन से द सिम्बॉल्स, अगर आप सिम्बॉल्स में लिख रहे हो तो वो भी हो सकता है. ओके, सो हाउ यू कैन डू इट, देयर आर डिफरेंट मेथड्स यूजिंग कीबोर्ड. कीबोर्ड की शॉर्टकट की से आप कर सकते हो. होम टैब पर जाकर आप फॉन्ट ग्रुप से कर सकते हो. ओके, सो दिस ऑल आर द ऑप्शंस एंड द राइट क्लिक इज द मेन. राइट क्लिक में भी आपके पास ऑप्शन आता है फॉन्ट ग्रुप. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉन्ट सिलेक्ट करना है. फॉन्ट यानी डिफरेंट, आपको डिफरेंट स्टाइल्स में आपको लिखना है, डिफरेंट हैंडराइटिंग आपको यूज़ करनी है. देन यू कैन गो फॉर फॉन्ट. यू कैन सी योर डिफरेंट फॉन्ट्स एज आई एम सिलेक्टिंग अकॉर्डिंग टू दैट वो चेंज हो रहा है. राइट, तो ये चेंजेस हो रहा है. तो ये
देख लीजिए ये चेंज हो गया, राइट। इफ़ आई वांट टू चेंज द साइज, मुझे साइज चेंज करना है, देन आई कैन गो विद द साइज ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हमें आई एम प्रेसिंग कंट्रोल Z, तो मैं अंडू कर रही हूँ तो वो वापस आ जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ भी एक ऑप्शन है, ओके, इंक्रीज और डिक्रीज के लिए। दिस इज टू इंक्रीज, दिस इज टू डिक्रीज। ओके, उसे कम ज़्यादा करने के लिए फॉन्ट साइज को। फिर हमारे पास है बोल्ड इफेक्ट। बोल्ड यानी वो डार्क लिखा जाएगा, वो टोगल बटन जैसा काम करेगा, स्विच ऑन स्विच ऑफ। जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, स्विच ऑफ करोगे तो बोल्ड निकल जाएगा। इटैलिक्स मीन्स इट विल गिव अ कर्व, ओके, तो वो इटैलिक में लिखा जाएगा। मैं आपको अलग अलग तरीके से, यानी जैसे ये है तो इसे बोल्ड किया है। नाउ आई एम गिविंग दिस सेंटेंस इटैलिक, मैं उसे इटैलिक कर रही हूँ। ओके, अब मुझे अंडरलाइन करना है, आई वॉन्ट टू गिव अंडरलाइन। तो अंडरलाइन किस लिए? many of the times you are writing some points and you want to make it important that part, तो आप underlining कर सकते हो। okay, you can give an underline over there। okay, now the shortcuts, control plus B is for bold, control plus I is for italic, control plus U is for underline। okay, अब आपको कहीं कैंसलेशन करना है, दैट दिस पार्ट आई डोंट वांटेड, हमारे पास टाइम नहीं है फिर से उसे चेंज करने है, देन यू कैन जस्ट गिव अ क्रॉस। ओके, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है स्ट्राइक थ्रू। ओके, यू कैन गिव अ स्ट्राइक थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। हाँ, आई एम नॉट गिवन द शॉर्टकट ऑफ दिस कि हाँ भाई हमें इंक्रीज और डिक्रीज, तो कंट्रोल शिफ्ट और आपको वो ग्रेटर देन साइन वाला दिखेगा एंड लेस देन साइन विच इज़ नियर बाय द शिफ्ट की आपको दिखेगा। सो ग्रेटर देन और लेस देन, so it will increase or decrease। okay, next now we will come back to our superscript and subscript। जैसे ये CO2 मुझे लिखना है, अब ये क्या हो गया, that is subscript। subscript यानी वो नीचे जाएगा, तो हमारे पास देखिए ये लिखा हुआ है, right, I will just select, मैंने select किया हुआ है 2 को, right, so it is done। we also have the shortcut, हमारे पास shortcut की भी है, तो हमें क्या करना है, ओके, हमारे पास शॉर्टकट की है, दैट इज कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस करने से क्या होगा कि हम सब्सक्रिप्ट कर पाएंगे। ओके, अगेन कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो वी विल बैक टू नॉर्मल। ओके, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर मुझे लिखना है, सॉरी मुझे एक्स स्क्वायर लिखना है, तो मैं एक्स और स्क्वायर लिखना चाहती हूँ, तो आई विल गो कंट्रोल शिफ्ट प्लस। देखो यहाँ कर्सर ऊपर चला गया। ओके, सो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप प्रेस करोगे एंड देन यू विल गो टू द सुपरस्क्रिप्ट। अब फिर से मैं प्रेस करूँगी, आई विल बैक टू नॉर्मल। ओके, अब मैं दिखा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द फॉन्ट ग्रुप। तो अब मैं लिख रही हूँ Y एंड देन आई विल गो विद द ऑप्शन ऑफ सुपरस्क्रिप्ट and I will write it 2 and I will again press it superscript, तो मैं back to normal। okay, now done। now the next thing that is about A, यहाँ आपको word art जैसा दिखेगा, you can change it, you can give the outlining, shadow effect आपको देनी है, reflection देना है, you can give it, you can see the effects, even you can do the changes। अगर आपको changes करनी है तो आप changes कर सकते हो आउटलाइन में, शेडो में। ओके, सो दिस इज अबाउट द वर्ड आर्ट, इट इज सेम लाइक वर्ड आर्ट, योर यू कैन सी द टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड द टाइपोग्राफी। नाउ द नेक्स्ट इज हाईलाइटिंग। बार बार आप देखते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, वी विल जस्ट क्लिक ऑन दिस हाईलाइट एंड व्हेन यू विल सी द कर्सर विल टर्न टू अ पेन, राइट, वो हाईलाइटर की तरफ वो चेंज हो जाएगा, राइट। अब मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, राइट, सो आई विल हाईलाइट इट। नाउ आई वांट टू रिमूव इट, अगर मुझे रिमूव करना है देन व्हाट आई विल डू, मैं सिलेक्ट करूँगी उससे, आई विल सिलेक्ट इट एंड आई विल गो ओवर हियर द ऑप्शन ऑफ नो कलर, तो हाईलाइट निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द फॉन्ट कलर। अब फॉन्ट कलर यानी टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना है, आपने वो जो देखा था वो टाइपोग्राफी था, नाउ दिस इज अबाउट द कलर, फॉन्ट कलर आपको चेंज करना है।
यू कैन गो विथ फॉन्ट कलर्स. ग्रेडियंट भी यहाँ ऑप्शंस है, आपको मोर कलर्स में जाना है. ओके, यू कैन डू इट. नेक्स्ट नाउ अबाउट द डिफरेंट केसेस. अब डिफरेंट केसेस यहाँ दिए हुए हैं, लाइक सेंटेंस केस. बाय डिफॉल्ट आपको पता ही होगा दैट इट इज़ ऑन सेंटेंस केस, मीन्स वेन एवर यू विल गिव अ फुल स्टॉप तो वो सेंटेंस केस में चला जाएगा. जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग, वाटर. देखिए मैंने वॉट लिखा एंड इट इज टर्निंग टू कैपिटल. देखिए अगेन आई एम राइटिंग, अगेन आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग इन अ स्मॉल हैंड राइटिंग. एज आई विल प्रेस द स्पेस बार, sorry, I have not given the sentence case, that's why. Okay, so I will just give it the sentence case. You can see. Okay, again I am writing. Okay, वो अपने आप चेंज कर लेगा. So this is about it. Now the next thing, हाँ, I will show you your sentence case. After that we have over here lower case, यानी everything will turn to small letters even after the full stop. जो sentence start हो रहा है first letter, that is also turning to a small letter. Next, after that we have upper case, यानी वो capital letters, everything will be in the capital letters. Again, next, capitalize each word, means each word the first letter will be capital. आपके जो word होता है उसका first letter हमेशा कैपिटल हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज टोगल. यू मस्ट हैव सीन दैट थिंग कि टोगल में क्या होता है कि आप टोगल में आप लोग देखते होंगे, लाइक कॉमिक्स की बुक में यू मस्ट हैव सीन दैट इट इज स्मॉल लेटर एट द स्टार्टिंग एंड आफ्टर दैट कैपिटल. So this is about the comic sense. Okay, sorry, comic books, in that you get it. Again we will go back to our sentence case. After that what you have it, that is the last option. यहाँ है clear all the formatting. जो भी आपने formatting किया है वो clear हो गया. You can see now italics is not there, not even bold is there. I will just turn this also, I will clear this one. तो निकल गया. Okay, so this way the font group is working. Okay, now we will go for the next, that is checking spelling and grammar. Now I am writing here computer R, one of the main. We can get all. Okay, you can see that I have done a mistake over here. SOART I have written instead of SORT, so it is turning red wavy lines. So what we have to do, we have many options over here, spelling and grammar. For that you can go by review tab. In that you have spelling and grammar. आपके पास proofing group में है spelling and grammar. Please remember the tab and the groups. Okay, if you don't want to go by this way, अगर आपको इस way से नहीं जाना है and shortcut से जाना है, then function key F7, function key F7, so it will show you the options. आपको suggestions देंगे. Then you have ignore once. Ignore once यानी once you can ignore that thing. अगर कभी कभार अपना नाम लिखते हैं then you can go for ignore. Ignore all means in the whole document. And add to dictionary. अगर आपका नाम बार बार आप लिख रहे हो, you are writing many times, or any of the unknown person name you are writing for the scripting or anything, तो आप add to dictionary कर सकते हो. Okay, now it is giving me the suggestion, so I will click on sort. Done. You can see that now the spell check is completed. Okay, अब grammar में blue wavy lines you will see it. What you will see? You will see a blue wavy lines. Okay, like you can see over here. I will just do it over here. Civilization,
ग्रामर में हमें आर इज को चेंज करना है, दैट वी कैन डू. ओके, लाइक योर ओके, यहाँ तो कोई मिस्टेक दिखा. हाँ, यर यू कैन सी अ मिस्टेक, यर यू कैन सी. तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है? यू कैन सी ब्लू वेवी लाइन, सो यू कैन गो फॉर द सजेशन दैट इज वी, राइट. सो this is a grammatical mistake. Next, now we are having over here thesaurus. Thesaurus is for what? To see the synonyms. Synonyms आपको पता ही होगा. Synonyms means you want to get the another meaning of it. Okay, so you can go by this way in the proofing. Okay, क्या proofing में जाकर आप कर सकते हो. Okay, I will just click on this and I will select thesaurus. Okay, even I can go with the option that is shift plus F7. Okay, shift plus F7 प्रेस करने पर भी वो आ जाता है. Okay, and the next option is by making a right click in that also you get the option of thesaurus. Okay, so yes, synonyms, any of the synonyms if you wanted you can select it all. देखो change हो गया. Okay, so this is being changed. Now the next thing that we are going to see, हम दूसरा जो देखने वाला है वो है कॉपी पेस्ट. सबको आता ही होगा कॉपी पेस्ट करना, राइट. आपको ये सिलेक्ट करना है एंड देन द शॉर्टकट की एवरीवन नो, कंट्रोल सी एंड द फॉर पेस्टिंग. अगर आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी, आपको कर्सर वहाँ ले जाना है एंड देन यू हैव टू पेस्ट इट. ओके, एंड द नेक्स्ट वे इज दैट यू विल सिलेक्ट इट. आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ आपको क्लिपबोर्ड में दिख रहा है कॉपी एंड देन you will click on paste. Okay, so there are two ways and the third way is आप सिलेक्ट करोगे, you will make a right click, आपके पास ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है. So this is the third way. Okay, now copy paste and cut paste it makes a difference. आपके लिए डिफरेंस करता है. क्यों? क्योंकि कॉपी पेस्ट में क्या हो रहा है, it makes a duplicate copy of it, और कट पेस्ट में वो मूव होता है, राइट. मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आपको मूव करना है. जैसे मैंने यहाँ इसको कट कर दिया, ठीक है, यहाँ से वो निकल गया, आपको दिख रहा है, नो इट इज़ नॉट अवेलेबल ओवर देयर. सो cut and then paste. The shortcut key for that is Control X and Control V. Control X and Control V. Okay. Next, now we are going, that is about find and replace. Find and replace means आपको change करना है, right? You don't want electronics, you want electric. So आप change कर सकते हो. You will select this thing and you have the shortcut again over here, that is a Control F. Okay, या तो फिर आप जा सकते हो find पर. देखो आपको वहाँ भी मिल जाएगा the shortcut. You can get it over there. Click on find. Okay, so electronics. Okay, and then this is just to find it. अगर आपको means you have made a whole document in that there are many pages, 30 40 100 pages तक है, और उसमें find out करना है और changes करना है, like किसी person का नाम आपने कहीं change करना है, then you can go with the find and replace. Okay, I will just go for the replace now. Control plus H. तो मुझे electronics को यहाँ electrics कर देना है. Electric. Okay, then click on replace. अगर replace all, now there are two options, replace and replace all. It will work same like ignore and ignore all. Ignore में आप one time और ignore all में whole document. Same way in everywhere wherever you have written, वहाँ वो replace all कर देगा. देखिए, yes, two replacement आता है because मैंने 2 बार copy किया है, cut paste किया है. You can see done. अब आप देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रिक एंड यहाँ भी इलेक्ट्रिक. नाउ इट इज शोइंग अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, राइट. सो दिस इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी, दैट इज अबाउट yes, bullets and numbering. Bullets and numbering everyone know. Two important points अगर आप लिख रहे हो then you can go for bullets and numbering. Okay,
तो हम बुलेट्स एंड नंबरिंग कैसे करेंगे? सो लेट अस स्टार्ट हाउ वी विल डू बुलेट्स एंड नंबरिंग. So we will just write some points, like I want to write the points speed, accuracy, okay, versatile, okay, then versatile, okay. So this much we will write and we will see. So हमने ये लिख दिया. अब हाँ, diligence, we can add it to that, diligence, okay. अब मुझे इसे करना है, इसमें मुझे डालना है, sorry, some mistake is there in writing, okay. तो मुझे इसको select करना है and now I want to give the bullets, okay. I can directly also I can do, and here also if I want to give the numbers I can give the numbers from here. हाँ, अगर आपको changes करना है, if you want to do the changes in the bullets and numbering, तो आपको यहाँ click करना है, आपको यहाँ change the list level. You can see many of the things in the library. तो आप कोई भी वो ले सकते हो. देखो यहाँ change आपको इस तरफ दिखाएगा. Okay, so you can see the changes. If I want to go for a new bullet, define करना है new bullet या तो change करना है list level, तो मैं list level change कर सकती हूँ. ओके, आई विल डिफाइन माई ओन बुलेट्स. तो मैं सिम्बॉल में से या पिक्चर में से कोई पिक्चर लेकर, यानी मेरे पास कोई फाइल है जिसमें से कोई पिक्चर मुझे लेना है, आई विल टेक द पिक्चर, राइट, एंड देन आई विल इंसर्ट इट. यू कैन सी हियर, आई विल जस्ट मैक्सिमाइज इट द साइज. ओके, यू कैन सी हियर दैट इट इज टर्निंग टू एन इमेज. ओके, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं इसमें डिफाइन करने में? वी कैन ऑल्सो गो टू द सिम्बॉल्स. अगर कुछ सिम्बॉल्स है, एरो है, या तो फिर बाद में आपको कुछ और लेना है. मैनी ऑफ द पीपल लाइक टू गिव डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक. अकॉर्डिंग टू द टॉपिक आप दे सकते हो, या तो फिर वेबडिंग्स में जाकर आप दे सकते हो. यू कैन गो टू द वेबडिंग्स एंड यू कैन गिव इट. Okay, here we are having webdings. You must be knowing wingdings. This like a pencil you can give it a smiley. Okay, I'm just giving it smiley, you just see. Okay, even you can change the font. आप उसका font change कर सकते हो, आप उसका size change कर सकते हो. देखिए यहाँ size के options है, बड़ा छोटा करना है आप size बड़ा छोटा कर सकते हो. Okay, तो color change करना है आप color भी change कर सकते हो. See, it is turning to yellow color. Okay, now about the numbering. You can see here the numbering. तो numbering में भी आपके पास option बहुत सारे हैं. You can define of your own. Again, you can go for define. यहाँ आप 1 के साथ you want with that bracket on both the sides, जो हमारे पास available नहीं है in default. You can select it. You can see over here that it's turning 1, 2, 3. Okay, so this is about it. एंड यर वी हैव नेस्टेड लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट. तो आपको मल्टी लेवल लिस्ट लेना है तो मल्टी लेवल ले सकते हो. व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट इट, कि आपको यहाँ कुछ लिखना है उसके बारे में कि स्पीड, सो द कंप्यूटर स्पीड इज़ दिस, सो आप लिख सकते हो. यू कैन गो फॉर इट. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ अलाइनिंग द टेक्स्ट. आप टेक्स्ट को कैसे अलाइन करेंगे? तो यहाँ थोड़ा हम मिनिमाइज कर लें. ओके, what we can do, you will select from here and ये left by default it is left aligned, sorry justified. आपको left करना है तो आपको दिख रहा होगा that margins from your right side से वो थोड़ा क्या हो रहा है, it will leave the space. Then if you are making it center aligned, so on both the sides you can see that on the left hand side also, on the right hand side also it is showing a space, right? तो वो क्या हो रहा है, सेंटर अलाइन. नाउ द राइट साइड, सो यू कैन सी द लेफ्ट साइड द स्पेस इज अवेलेबल. एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ जस्टिफाई, तो जस्टिफाई में क्या वो करेगा, वो अकॉर्डिंग टू द मार्जिन वो सेट करेगा. यू मस्ट हैव सीन दैट इन द मैगजीन्स में और ये सब में वो लोग जस्टिफाई करके रखते हैं, सो इट मे लुक proper. Okay, now the shortcuts. Yes, control plus E is for center, control plus L is for left, control plus R is for right, and control plus J is for justify. Okay, अब हम जाएंगे next thing, that is tab key. You must have seen कि हम tab की प्रेस करते हैं तो वो 5 spaces वो लेकर चलता है, right?
that is called the tab and indentation. अगर आपको indentation increase करना है और decrease, here we have the option. You can see here, increase the indent and decrease the indent. Okay, so you can increase or decrease the indentation. Then we also have first line indent, hanging indent and left indent. First line indent में क्या होगा? It will only move this part. You just see. Okay, first line indentation. आप वो कर्सर वहाँ रखोगे फर्स्ट लाइन पे एंड देन द कर्सर यू विल मूव ऑफ इट. हाँ, इफ इट इज जॉइंड यू मस्ट हैव टू कीप इट इन माइंड दैट ऊपर जो टॉप पे है उसी को मूव करना है, नॉट टुगेदर. ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट वी हैव ओवर हियर दैट इज अबाउट द हैंगिंग इंडेंट. ओके, हैंगिंग इंडेंट, सो इट विल बी ऑल्सो मूविंग according to the paragraph. अगर आपने select कर लिया है, if you are selecting the whole thing and then you are doing, just see over here, then what will happen. Okay, and if so I have to select the paragraph. मुझे इस paragraph select करना है और उसके according. देखिए यहाँ paragraph नहीं था, it was only a text, so it is not going. But if you are selecting a paragraph, अगर आपका paragraph है then it will go in for the indentations. Okay, next is about views. हाँ, different views you can see. तो आपको view tab दिख रहा होगा. In that view tab you can see read mode. ये reading mode हो गया. Okay, I want to close it. I will close it from here. Sorry, मैं यहाँ से व्यू एडिट डॉक्यूमेंट मोड में आ जाऊंगी. ओके, नाउ प्रिंट लेआउट, दिस इज ऑलरेडी वी आर वर्किंग. वेब लेआउट, आउटलाइन, देखो ये आउटलाइन में दिखाएगा. ओके, इफ यू वांट टू क्लोज इट देन यू कैन गो फॉर क्लोज. ओके, एंड लास्टली द टैब दैट इज अबाउट ड्राफ्ट. ओके, एज अ ड्राफ्ट यू विल सी इट. ओके, ड्राफ्ट में क्या होता है दैट इट विल वर्क वेरी क्विकली. ओके, ड्राफ्ट व्यू में वो डिस्प्ले करता है कंटिन्यूस टेक्स्ट, स्क्रॉल, पेज ब्रेक्स, सब कुछ आपको वहाँ दिखेगा. ओके, सो दिस इज अबाउट इट. नाउ द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी that is to see the preview. Okay, how to see the preview? मैंने आपको पहले ही बताया था that in the quick access toolbar we have the option of print preview and print. Okay, तो आप वहाँ क्लिक करोगे so you can see from here the print preview. Okay, or you can go by the file tab and in that you can go for print. Okay, आप जैसे ही print पे क्लिक करोगे you can see the preview of it. Okay, now what are the settings? You can see here that it is OneNote. अगर आपको OneNote नहीं करना है and you want to go for the printer, अगर आपका कोई printer है तो आप printer ले सकते हो, fax कर सकते हो. You can even go for add printer. अगर printer नहीं है install करना है then add the printer over here. Okay, you can do the settings of printer from here. नेक्स्ट इज प्रिंट ऑल पेजेस. अगर आपको इवन ऑड में भी सिलेक्शन करना है, इफ़ यू आर हैविंग अ बुक and that is of means you have written many of the pages and you want to go for odd and even, तो आप odd and even कर सकते हो, right? And many of the places we have seen that the Xerox machine in that it is both the sides it can do the printing, तो आप वो भी कर सकते हो. देखो यहाँ one side printed and manually print up on both the sides you can do. Okay, then you have collated and uncollated. आपको यहाँ दिख रहा होगा collated means what, that it will make a copy continuous, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे pages आपके continuous चलता रहेगा collated में. while uncollated में क्या होगा, that first page for that I want to take 3 copies. अगर मुझे 3 कॉपी चाहिए उसकी then it will take off the first page, then of the second page 3 copies, then the third page 3 copies. Okay, so this is about it. I want to go for कोलेटेड. तो कोलेटेड में क्या होगा, 3 कॉपीज चाहिए तो वो पूरा सेट बन के आएगा कि हाँ येस 1 to 10 पेजेस है तो मेरे 1 to 10 पेजेस ऑफ दैट ओनली दैट मीन्स डॉक्यूमेंट इट विल डू. नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. एवरीवन नो पोर्ट्रेट मीन्स वर्टिकल, लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल आएगा. ओके, हियर द सेटिंग
ऑफ साइज, कौन से साइज का पेपर आपको लेना है, तो A4 साइज पेपर बाय डिफॉल्ट हम लोग रखते ही है. आई विल गो विद द पोर्ट्रेट. देन वी हैव द मार्जिन. मार्जिन अगर आपको सेट करना है, यू वांट टू सेट द मार्जिन्स, यस यू कैन सेट द मार्जिन्स ऑल्सो. ओके, नाउ व्हाट, योर करंट पेज अगर आपको करना है, हियर यू कैन सी दैट वी ऑल्सो हैव द प्रिंट द करंट पेज. तो आप एक ही पेज, जो पेज में आप कर्सर रखे हो वही प्रिंट आउट होगा, ओनली दैट विल बी प्रिंटेड. ओके, एंड प्रिंट ऑल द पेजेस, एवरीवन नो. कस्टम प्रिंट मीन्स आप क्या कर सकते हो, 1, 2, 3, देन 4 to आई वांट टू गो फॉर 5 to 7, तो मैं ऐसे ले सकती हूँ. आई कैन गो विथ 9. ओके, तो ये सब कस्टम प्रिंट्स इन सम ऑफ द पेजेस यू वांट टू गेट इट. So this is about it. Now creating table. Now how to create the table? तो हम create कैसे करेंगे? We will go with insert in that table. You can see the table. Here we have the grid over here. So in that you can see, first of all you must know about table. आपको table के बारे में पता होना चाहिए कि table is made of rows and columns. rows यानी क्या, horizontally वो row होते हैं, ये आपको horizontally row दिखेंगे, vertically it is called a column. okay, और दोनों को मिलाकर क्या होता है, that is the cell. okay, so I want to take 3 columns right and 4 rows. देखिए, okay, I have done. If I want to go with the 5, right, 5 columns and 3 rows, I can do that also by the grid. Next option is के insert table में जाकर, insert table, in that you can do the selection of the columns. आपके हिसाब से आप ले सकते हो. okay, you can do the selection. Then we have the another option, that is draw the table. अगर आपको draw करना है आप draw कर सकते हो. okay, आपको ऐसे ड्राइंग करना है, एंड इन दैट यू वांट टू मेक इट ऑफ योर ओन. आपको खुद से टेबल बनाना है, आप खुद से बना सकते हो. राइट, आपको यहाँ देना है, इस तरफ देना है, यू कैन डू इट. ओके, यू कैन ड्रॉ इट, यू कैन इरेज इट, आप इरेज भी कर सकते हो उसे. सो दिस इज नेक्स्ट. नाउ आफ्टर दैट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी कोई स्प्रेडशीट है विच यू ऑलरेडी हैव इट, तो उसे आप उसमें आप लिख सकते हो, या और उसमें ऐसे ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, लाइक आई एम राइटिंग योर नेम, सरनेम, okay, done. if I have done it, आपको दिख रहा होगा यहाँ आ गया. right, so this is about it. next after that we will see, that is table में quick tables, colorful tables. if you want it तो colorful tables you can go for it, तो colorful table आप ले सकते हो. okay, so this is about it. I will just go with this table. okay, now we will see about how to do the editing, inserting row and column. तो पहले मैं लिख लूँ, I'll just write it here. You can use the tab key also or the shift key also, right, like here. okay, I am just writing, then okay, next. Now after that I am just over here, right, you can see over here that the row and the columns, I can also do the changes over here, right, मैं change कर सकती हूँ. now how to insert it, you will select the row, आपको जो row चाहिए वो select करो. you will see your design and layout tab, आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिज़ाइन एंड लेआउट.
ओके, सो व्हेन यू विल गो टू द लेआउट यू हैव द ऑप्शन इंसर्ट अबाउ, यानी ये ऊपर आएगा, देखिए द रो विल बी इंसर्टेड अबाउ, बिलो तो नीचे आएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द रो। नाउ अबाउट द कॉलम, कॉलम को सिलेक्ट करना है एंड देन इंसर्ट ऑन द लेफ्ट और इंसर्ट ऑन द राइट। ओके, तो ये ऑप्शन है। देन वी हैव द नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज अबाउट cells, right? If you want to insert a cell, आपको insert करना है cell, then you will click on the right click and you will go with insert cells. तो यहाँ ऑप्शन आएगा that whether you want to shift the cells down, यानी ये जो नाम लिखा है that will move down. Okay, if you want to shift the cells, देखिए insert cells, shift the cells right, so it will go on the right hand side. Okay, so this way we can do it. Same way it is for the delete, but it will be a vice versa. Okay, तो उसमें क्या होगा कि आप delete कर रहे हो, you will go for delete. In that delete the cells आप click करोगे, it will ask you to move the shift cells left. Okay, I'll just select one cell and then I will go for the cells, shift the cells left. ओके, तो देखो ये लेफ्ट साइड में आ गया। अगेन शिफ्ट द सेल्स अप, तो वो ऊपर आ गए सारे सेल्स जो उसके नीचे थे, राइट। नेक्स्ट आफ्टर दैट वी हैव डिलीट द कॉलम्स, सो द होल कॉलम वेयर आई हैव केप्ट द कर्सर दैट विल बी रिमूव फ्रॉम देयर। डिलीट द रो, तो वो रो डिलीट हो जाएगा। एंड लास्टली इफ यू वांट टू डिलीट द टेबल यू कैन डिलीट द होल टेबल। आपको टेबल डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू टेबल। तो जैसे मैंने ये नेम लिखा, आई विल जस्ट प्रेस द टैब की, प्लीज कीप इट इन माइंड, टैब की प्रेस करना है आपको। ओके, अब मैं यहाँ 1 यहाँ फिर से लिख रही हूँ। ओके, आप देख सकते हो। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग योर, लिख लिया। नाउ यू विल सिलेक्ट दिस थिंग, आप इसे सिलेक्ट करोगे, यू विल गो फॉर इंसर्ट, सॉरी हाँ, कन्वर्ट द टेक्स्ट टू टेबल। ओके, नेक्स्ट वे इज दैट लाइक अगर आपने यहाँ जो है इसको सिलेक्ट किया एंड नाउ आई वॉन्ट टू टर्न दिस टू, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस टू टेबल टू टेक्स्ट, तो मुझे कहाँ जाना है? आई हैव टू गो टू द लेआउट टैब। इन लेआउट टैब वी हैव द ऑप्शन ऑफ कन्वर्ट टू टेक्स्ट। सो टैब लेकर इफ यू वांट टैब्स देन you can give it. This way you can do these things. So 2 ways are there. Okay, now the next is adding borders and shading. आप borders कैसे दे दोगे? तो आपको जाना है, you have to go to the borders option which we have it over here. आपको यहाँ दिख रहा होगा border and shading, and in that box effect if you want to give shadow effect, आपको लाइनिंग चाहिए तो आप डिफरेंट लाइनिंग ले सकते हो। आई विल जस्ट शो यू ओवर हियर, राइट। मैंने कर्सर वहाँ रखा था इसलिए वो दिखा रहा है, राइट। और इफ़ यू वांट टू फॉर द पैराग्राफ, अगर आपको पैराग्राफ के लिए चाहिए तो पैराग्राफ के लिए आप दे सकते हो। ओके, लाइक इन पैराग्राफ बॉर्डर एंड शेडिंग बॉक्स यू कैन सी, राइट। इवन यू कैन चेंज द कलर। हाँ, इफ़ यू वांट द पेज बॉर्डर, अगर आपको पेज बॉर्डर चाहिए तो आपको क्या करना है? यू हैव टू गो टू द डिज़ाइन and in that page border, so you can give the page border also. Box effect, again I am giving the box effect, तो वो पूरा यहाँ हो जाएगा। देखिए, you can see the preview. I will just click on the preview. You can see over there. Okay, so this is about it. Okay, now the next is how to do the borders. For that we have seen. Now the color, right? Yes, border color also you can change it. तो आपको क्या करना है?
both the methods I have told you, home and design. Home, in that you can do the borders for the page, paragraph, okay, paragraph, sentence, or maybe any part of it, right? But design, in that you have for the page borders, in that you can change the color also. आपको box लेना है, आप अलग अलग ले सकते हो ये styles, and if you want to set the color, आप set कर सकते हो colors, okay, and then click on it, done. We also have the option of art. यहाँ art का भी option है, तो आप देखिए, okay, so you can also give the art effect. Now the margin. Margin, in that we have the layout. Layout में मैंने आपको पहले ही explain कर दिया. We have given the explanation of the size and the all, right? So if you want to change the paper size, आप change कर सकते हो. More paper में जाकर आपको जो भी options आपको paper में मिल रहे हैं वो paper आप ले सकते हो, okay? And then next is margin. Your margin you want to set it, तो margin by default some of the things are given. You can also go for custom margin. आप custom margin कर सकते हो in inches or in centimeters, okay? So you can give it. So this is about the margin. Hope you all have understand. Please like and subscribe my channel. Thank you.